Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 18. Lecture number 18 is in continuation of lecture number 17 whereby we talked about the multinational cost of capital and its capital structure. So we are going to start with this lecture with a problem. एक मैं आपके सामने numerical करूँगी which is based on the CAPM model की जो equation है उसको लेके we are going to solve for the cost of capital. So example states short numerical. Luxon company for a project in Argentine during the next year. So there is a multinational company, Luxon company, a successful US-based MNC is considering how to obtain funding for a project in Argentine during the next year. It considers the following information. US risk-free rate 6%, Argentine risk-free rate 10%, risk premium on dollar denominated debt provided by US creditors then is risk premium on Argentine peso denominated debt provided by Argentine creditors is equal to 5%. Beta of project that is expected sensitivity of
expected sensitivity of project returns to US investors in response to the US market is equal to 1.5. Expected US market return %, then is US corporate tax rate %, Argentine corporate tax rate 30%, then creditors will likely allow no more than 50% of the financing to be in the form of debt, which implies that equity must provide at least half of the financing. Okay, before we start with the solution, let me read it out for you. Luxon Company, a successful US-based MNC, is considering how to obtain funding for a project in Argentina during the next year. It considers the following information. Number 1, US risk-free rate 6%, Argentine risk-free rate 10%, risk premium on dollar-denominated debt provided by US creditors 3%, risk premium on Argentine peso denominated debt provided by Argentine creditors 5%, beta of project, that is the expected sensitivity of the project returns to the US investor in response to the US market, is equal to 1.5, expected US market return 14%, US corporate tax rate 30%, Argentine corporate tax rate 30%. Creditors will likely allow no more than 50% of the financing to be in the form of debt, which implies that the equity must provide at least half of the financing. यानी equity जो है वो half होगी और debt भी half, 50-50 के percentage से. Now let's solve it. हम हर component की ना cost calculate करेंगे. So the Luxon's cost of each component of capital हम डेट की भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और हम सेपरेटली इक्विटी की कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे. लाइक हमने इससे पहले भी इस्टेब्लिश किया था कि हमारे पास जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते थे तो दो कंपोनेंट्स थे, एक डेट था और एक इक्विटी थी. हम उन्हीं फार्मूलाज को यूज करेंगे. सो हमने बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि हमें डॉलर डिनोमिनेटेड, लक्सन कंपनी को डॉलर डिनोमिनेटेड
अगर वो डेट लेगा तो उसको क्या कॉस्ट पड़ेगी, और अगर वो यूएस डिनोमिनेटेड डेट लेगा तो उसको क्या कॉस्ट पड़ेगी, हम उनकी सेपरेट और फिर हम इक्विटी भी की भी कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डॉलर डिनोमिनेटेड डेट, कॉस्ट ऑफ डॉलर डिनोमिनेटेड डेट. अब वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 6%. 6% इज द यूएस रिस्क फ्री रेट, प्लस उसके अंदर आपने ऐड करना है 3%, एंड 3% इज द रिस्क प्रीमियम ऑन द डॉलर डिनोमिनेटेड डेट बाय द यूएस क्रेडिटर. जो रिस्क प्रीमियम मांग रहा है उसको भी ऐड कर लें और 1 माइनस टी कर लें. 1 माइनस टी क्या है, 1 टी कितना है आपका 30%. सो यू विल राइट इट लाइक दिस. इसको कैलकुलेट करें, अपना कैलकुलेटर उठा लें. 1 माइनस 0.3 0.7 हो गया. 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 9 is equal to 6.3%. So the cost of dollar denominated debt is 6.3%, जिसमें हमने रिस्क फ्री रेट को ऐड किया और हमने रिस्क प्रीमियम ऑन द डॉलर डिनोमिनेटेड डेट प्रोवाइडेड बाय द यूएस क्रेडिटर उसको ऐड कर लिया. सर वो प्रीमियम मांग रहा है जो क्रेडिटर है, हमने उसको एडजस्ट कर लिया उसमें. सो द कॉस्ट ऑफ डॉलर डिनोमिनेटेड डेट इज इक्वल टू 6.3. नाउ वी वुड लाइक टू सी के व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अर्जेंटाइन डिनोमिनेटेड डेट. Cost of Argentine peso denominated debt, that is equal to 10%. ये आपका अर्जेंटाइन का रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम ऑन द अर्जेंटाइन पेसो डिनोमिनेटेड डेट प्रोवाइडेड बाय द अर्जेंटाइन क्रेडिटर्स. इसमें आप 5 ऐड करने and 1 minus t. 0.7 multiplied by 15, 10.5. So the cost of Argentine denominated peso debt is equal to 10.5%. अब हम इक्विटी का कंपोनेंट भी कैलकुलेट करेंगे. So this is the cost of dollar denominated equity. वो कैसे होगा, हमने डॉलर डिनोमिनेटेड इक्विटी का जो फार्मूला है दैट इज रिस्क फ्री रेट, हम इसको कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट कैपम इक्वेशन. और वो क्या है, रिस्क फ्री रेट RF plus beta RM minus RF. What is RF? हम डॉलर की बात करें, रिस्क फ्री इज 6% प्लस बीटा किधर है 1.5, RM किधर है, RM is the market return. Market return is 14%. 1.5 market return is 14, risk free rate is 6. इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें. 14 minus 6 multiplied by 1.5 और plus 6, that is equal to 18%. So equity की cost आ गई हमारे पास 1.8%. So that is how we have calculated dollar denominated cost of debt, the cost of Argentine peso denominated debt and the cost of dollar denominated equity. हमने इन तीनों component of cost को कैलकुलेट कर लिया. और जब हम फिर अब इसका कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ तक तो उन्होंने यही कहा था कि हमें हाउ टू ऑब्टेन फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट. अगर हम अर्जेंटाइन में बैठ के इनको फाइनेंस करना चाहें तो विच वन इज बेटर, हमने उसकी सब कॉस्ट कैलकुलेट कर ली. जो हमें अब इसमें से सबसे कम लगेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हवाले से वी आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर दैट. जैसा कि हमें यहाँ नजर आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ डॉलर डिनोमिनेटेड डेट यहाँ पे सबसे ज्यादा कम आ रहा है, तो वी विल ऑप्ट फॉर दैट. इसके बाद जो अगला स्टेप होता है दैट इज टू calculate the WACC, that is the weighted average cost of capital. So up till now we have calculated the cost of capital of different components जो कि हमें different
डिनोमिनेटेड डेट्स के और इन इक्विटी के हमने कैलकुलेट किए. सो नाउ वी विल मूव ऑन. Countries' differences in the cost of equity. A firm's return on equity can be measured by the risk-free interest rate plus a premium that reflects the risk of firm. जैसा कि आपको अभी न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको इक्वेशन से समझाया कि that is going to be the that can be measured by the risk-free interest rate plus a premium that reflects the risk of a firm. The cost of equity represents an opportunity cost and is thus also based on the available investment opportunities. तो cost of equity जो है that is going to represent the opportunity cost और ये हमें available investment opportunities के ऊपर भी base करती है. It can be estimated by applying a price earnings multiple to the stream of earnings और हम इसको calculate कर सकते हैं with the help of price earnings multiple to a stream of earnings. Higher the price to earning multiple, lower is the cost of equity. जितना ज्यादा price to earning multiple होगा आपकी जो cost of equity है वो उतनी ही कम होगी. Now let's estimate the firm's weighted average cost of capital for financing a project. आपके सामने ये एक टेबल आपके सामने आ गया whereby we have the different possible capital structures. पॉसिबल कैपिटल स्ट्रक्चर से मतलब है कि हम क्या क्या कॉम्बिनेशंस रख सकते हैं डेट और इक्विटी के लिहाज से. और हमारे पास यूएस का डेट भी है एंड वी हैव दी अर्जेंटाइन डेट एंड वी हैव दी अर्जेंटाइन इक्विटी. जो वही सेम एग्जांपल जो मैंने आपको अभी सॉल्व करके दी है जिसमें हमने 6.3% यूएस डेट की निकाली, अर्जेंटाइन डेट की 10.5 निकाली और इक्विटी की हमने 18% निकाली. वी आर हेयर गोइंग टू एस्टिमेट द फर्म्स WACC. अब हम इसका जो अगला स्टेप है दैट इज गोइंग टू बी the calculation of WACC, that is the weighted average cost of capital. अब ये क्या है, पहले उसकी तरफ आ जाएं, कॉलम की तरफ. The first column represents the possible capital structure जिसके अंदर हमने पहली रो में लिखा है 30% US debt and 70% equity. सेकंड में 50% US debt and 50% US equity 50-50 के हिसाब से. थर्ड में हमारे पास तीनों कॉम्बिनेशंस हैं 20% US debt, 30% अर्जेंटाइन डेट and 50% is US equity. और लास्ट में we have the 50% अर्जेंटाइन डेट and 50% US equity. अच्छा, इन कॉम्बिनेशंस के अलावा भी there can be many combinations like 30-70 के बजाय 20-80 का भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन. लेकिन मैंने आपको जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था अबाउट द फाइनेंशियल लिवरेज कि हर कंट्री का जो फाइनेंशियल लिवरेज का जो ऑप्शन है वो भी डिफरेंट है. कुछ कंट्रीज जो है वो ज्यादा वेलकम करती हैं फॉर हैविंग अ हायर फाइनेंशियल लिवरेज और कुछ कंट्रीज जो है वो कम फाइनेंशियल लिवरेज को प्रेफर करती हैं. सो सेकंड कॉलम में आप देखिएगा दैट इज अबाउट द यूएस डेट. उसकी कॉस्ट है इज इक्वल टू 6.3%. अब हम अगर हम सिर्फ यूएस की कॉस्ट कैलकुलेट करें तो इन सारे कॉलम्स में यहाँ देखें दिस इज 30% यूएस डेट और कॉस्ट है उसकी 6.3. हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे. लेट्स डू इट. आप भी अपना कैलकुलेटर ले लें. 30% यूएस डेट है, 30% मल्टीप्लाइड बाय 6.3 सो इट इज इक्वल टू 1.89. ठीक है. देन इज 50% 0.50 multiplied by 0.063 it is equal to 3.15%. then comes थर्ड रो में आप देखें दिस इज 20% यूएस डेट और इसकी कॉस्ट से आप मल्टीप्लाई करें दैट इज इक्वल टू 1.26%. अर्जेंटाइन डेट के लिए आ जाइए. अर्जेंटाइन डेट में हमारे जो पहले जो तीन कॉम्बिनेशंस हैं, दो कॉम्बिनेशंस हैं, उसमें हमारे पास अर्जेंटाइन डेट नहीं है. सो वी आर नॉट वरीड. नीचे आए, यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है दैट इज अबाउट दी 30% अर्जेंटाइन डेट. 30% को मल्टीप्लाई करें 10.5% से सो इट इज 33.15%. और लास्ट रो में 50% है. 50% मल्टीप्लाइड बाय 10.5 इट इज इक्वल टू 5.25. ये हो गया. अब इक्विटी में आ जाएं. इक्विटी में देखें पहली रो में हमारे पास 70% इक्विटी है. 70% इक्विटी को 18% से मल्टीप्लाई करें 12.60. 50 मल्टीप्लाइड बाय 18 9%. हंड्रेड्स में आ रहे हैं उनको आप डिवाइड कर लें 100 से. 50 मल्टीप्लाइड बाय 18
9%, 50 मल्टीप्लाइड बाई 18, 900 आता है आंसर, डिवाइड करें 100 से, 9%, ये आ गया आपका। अच्छा जी, अब क्या है, अब ये जो आपके पास कैलकुलेशंस आ गई है ना, ये वाला प्लस ये वाला, इनको ऐड कर लें, इट इज गोइंग टू गिव यू दी वेटेड एवरेज एस्टिमेटेड वैक। इन दोनों को ऐड कीजिएगा, इस रो में इन दोनों को ऐड कर लें, तीनों को, क्योंकि इसमें इस कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने 3 कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, एक 20% यूएस डेट का, 30% अर्जेंटाइन डेट का और 50% यूएस इक्विटी का। तो इसमें आप तीनों को प्लस करेंगे और लास्ट रो में वी हैव दीज 2। ठीक है, अच्छा आप इनको ऐड करें। सो वी आर गोइंग टू ऐड देम अप, 1.89 प्लस 12.6 इट इज इक्वल टू 14.49, 3.15 plus 9 it is 12.15, 1.26 plus 3.15 plus 9 is equal to 13.41, then is 5.25 plus 9 it is equal to 14.25. अच्छा, if we look at the last column that is about the estimated WACC, estimated WACC में हमारा देखें कि सबसे जो मिनिमम हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है वो आ रही है इस ऑप्शन में, दैट इज विद 50% डेट एंड 50% यूएस इक्विटी, इस कॉम्बिनेशन के अंदर। अब अगर आप इन कॉम्बिनेशंस को चेंज भी करते जाएं एंड देन यू लुक एट कि कौन से कॉम्बिनेशन में हमारा बेस्ट WACC आता है एट इट्स मिनिमम, यू कैन अडॉप्ट दैट। लेकिन स्टूडेंट्स ये पॉसिबल ज़्यादा इजी उस वक्त हो जाएगा अगर आप इसको किसी स्प्रेडशीट में डाल लें, एक्सेल में डाल लें, किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाल लें एंड देन यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ डेट्स एंड इक्विटी कॉम्बिनेशंस एंड देन यू कैन कैलकुलेट द WACC। अगर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो देन यू वुड बी एबल टू नो मैनी पॉसिबिलिटीज जहां पे आपके पास कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है। सो दिस इज अ गुड वे टू नो कि WACC आपका मिनिमम किस में आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप दूसरे कंट्री का ही डेट लें या इक्विटी लें तो तभी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। कई दफा ये होता है कि आपको अपने जो कंट्री का डिनोमिनेटेड डेट है या इक्विटी लेना वो ज्यादा बेहतर होता है, जैसा कि इस वाले केस में हुआ कि अगर हम अपना कॉम्बिनेशन रख लें 50% डेट एंड 50% इक्विटी और दोनों यूएस डिनोमिनेटेड डेट भी और इक्विटी भी, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इट्स मिनिमम आई है। और उसकी रीजन मैंने आपको ये बताई कि द कंट्रीज दे हैव द डिफरेंट रिस्क फ्री रेट्स एंड द रिस्क प्रीमियम एंड द मार्केट रिटर्न्स, उसके हिसाब से ये वेरी होते रहते हैं। तो डिफरेंस होने का सिर्फ हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि यू आर ऑलवेज गोइंग टू एक्सपेरिमेंट विद देम। कई दफा आपको अपने ही कंट्री की डिनोमिनेटेड करेंसी में शायद बोरो करना या शायद उसी के अंदर इक्विटी को यूज करना आपके लिए ज्यादा बेहतर हो। इट ऑल डिपेंड्स एंड यू नीड टू डू द कैलकुलेशंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कैन हेल्प यू आउट। ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताया, अदरवाइज तो ये मैनुअली हम कर रहे थे, मैंने आपके सामने इसको मैनुअली किया, लेकिन अगर हम इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाल दें तो सॉफ्टवेयर कैन ऑटोमेटिकली डू ऑल दीज थिंग्स विद अस, और वो हमें ज्यादा कॉम्बिनेशंस के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विद अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस। तो वो ज्यादा हमारे लिए बेहतर हो जाएगा कैलकुलेट करना कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दैट वे। नाउ यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर असेसिंग फॉरेन प्रोजेक्ट्स, जब हम फॉरेन प्रोजेक्ट्स अपने असेस करने जाएंगे, हाउ वुड वी यूज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? व्हेन द रिस्क लेवल ऑफ अ फॉरेन प्रोजेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन एमएनसी, द एमएनसीज weighted average cost of capital may not be the appropriate required rate of return for the project. अच्छा, एक चीज जो हम यहाँ पे मुसलसल इग्नोर करते आए, that was the risk level of a foreign project. And what is the risk level of a foreign project? Risk level of a foreign project is different from that of an MNC. वो definitely different होगा क्योंकि foreign project आपका ज्यादा exposed है to that very international environment, और आपके वो MNC से different है, and MNC's weighted average of कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी डिफरेंट है, एंड इट कैन नॉट बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ट्रू प्रिडिक्टर हो अबाउट द कॉस्ट, क्योंकि हमने इसमें रिस्क लेवल को इग्नोर किया हुआ है।
देयर आर वेरियस वेज टू अकाउंट फॉर दिस रिस्क डिफरेंशियल इन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। अब इस रिस्क डिफरेंशियल को हम अपने पास किस तरह से एडजस्ट करें, वो उसके बहुत सारे कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में उसको अकाउंट फॉर करने के बहुत सारे तरीके हैं। इस रिस्क डिफरेंशियल को कैपिटल बजटिंग में एडजस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, और वो क्या हैं? नंबर 1 इज डिराइव एनपीवीज बेस्ड ऑन द वैक। आप अपनी जो एनपीवीज हैं, एनपीवीज मींस नेट प्रेजेंट वैल्यूज, उनको कैलकुलेट करें ऑन द बेसिस ऑफ वैक। एनपीवी स्टैंड्स फॉर net present values and WACC stands for weighted average cost of capital. So NPV stands for net present values and WACC stands for the weighted average cost of capital. आपने जो अपनी एनपीवीज हैं उनको ड्राइव करें विच आर बेस्ड ऑन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनपीवीज टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉरेन प्रोजेक्ट विल जनरेट अ रिटर्न दैट इज एट लीस्ट इक्वल टू द फर्म्स वैक। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनपीवीज कैलकुलेट कर लें ऐसे करके। एनपीवी आपकी मैक्सिमम किस पे आती है, मिनिमम किस पे आती है, और ये कि हाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉरेन प्रोजेक्ट विल जनरेट अ रिटर्न दैट इज एट लीस्ट इक्वल टू द फर्म्स बैक। कौन सा एनपीवी ऐसा है जिसपे हमारी फर्म की जो मिनिमम जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो पूरी होती है, ठीक है ना। यानी कि हमारी एनपीवी आप इस तरह से ड्राइव करें कि वो फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एडजस्ट करती हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप ये समझें दिस इज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो उसकी एनपीवी इतनी जरूर होनी चाहिए एट इट्स मिनिमम कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो उससे एडजस्ट होती हो या वो उससे पूरी होती हो। एडजस्ट द वैक फॉर द रिस्क डिफरेंशियल। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने वैक को रिस्क डिफरेंशियल के साथ एडजस्ट करें। कैसे? रिस्क डिफरेंशियल में अपने वैक को एडजस्ट करें, जैसे कि इफ द प्रोजेक्ट इज रिस्कियर एड अ रिस्क प्रीमियम टू द वैक टू डिराइव द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले हम प्रोजेक्ट के रिस्क को इग्नोर करते आए हैं कि हम उसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। तो आप अपने प्रोजेक्ट के रिस्क को उसके अंदर ऐड कर लें। इफ द प्रोजेक्ट इज रिस्कियर, अगर आपका प्रोजेक्ट रिस्की है, ज्यादा रिस्की है, तो आप उसका जो रिस्क प्रीमियम है वो इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में डाल दें। समझ आ रही है? आप वैक के अंदर रिस्क प्रीमियम डाल दें सो एज टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट। वैक के अंदर उसको एडजस्ट कर लें। ये ऐसी बात है जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि वी आर गोइंग टू इंक्रीज द इन्फ्लेशन बाय लेट्स से 2% इन द नेक्स्ट ईयर, तो वो साथ ही एम्प्लॉइज को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या फॉर रेस्ट ऑफ द अदर बिजनेसेस को वो उस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा अलाउंस दे दें। इज दैट क्लियर? ऐसा होता कम है, लेकिन वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो वी आर गोइंग टू इंक्रीज दिस परसेंटेज in the salaries of those employees, so that is going to automatically adjust that कि वो हमारा जो inflation का increase था that is going to increase the salaries of the employees. So if the project is riskier, add a risk premium to the WACC to drive the required rate of return on the projects. Now using the cost of capital for assessing foreign projects, drive the NPV of the equity investment, explicitly account for the MNC's debt payments, especially those in the foreign country, so as to fully account for the effects of expected exchange rate movements. तो आपकी जो exchange rate movements हैं उनको भी आपने fully account for करना है while you are doing this NPVs of the equity investment. So it explicitly account for the MNC's debt payments. Okay, I want to read out few examples for you. जो हमने पहली चीज पढ़ी थी दैट वाज अबाउट दी एडजस्ट दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द रिस्क डिफरेंशियल, जो सेकंड वाली थी उससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल पढ़ के सुनाती हूँ।
Luxon estimated that its WACC will be 12.5% if it uses the capital structure of 50% denominated debt and 50% denominated equity. जैसे कि हमने एग्जांपल में पढ़ा था कि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.15% होगी अगर वो 50% डेट ले लेंगे और 50% इक्विटी. बट इट रिकग्नाइजेज दैट इट्स अर्जेंटाइन प्रोजेक्ट विल बी एक्सपोज टू द एक्सचेंज रेट रिस्क एंड दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपोज टू मोर रिस्क देन इट्स नॉर्मल ऑपरेशंस. लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी रिकग्नाइज किया कि जो उनका अर्जेंटाइन वाला प्रोजेक्ट है that is going to be exposed to the exchange rate risk and that project is exposed to more risk than its normal operations. जो उसके normal operations है उनसे ज्यादा उसका risk है. Luxon considers adding a risk premium of 6 percentage points to the WACC to drive the required rate of return. तो Luxon ने ये सोचा कि वो 6% का जो रिस्क प्रीमियम है वो उसके अंदर ऐड कर देगा. लाइक पहले 12.15 था तो 12.15 में उन्होंने 6 ऐड कर दिया. दैट केम टू 18.15. सो हाउएवर जो इसकी यूजफुलनेस है इस मेथड की दैट इज लिमिटेड बिकॉज द रिस्क प्रीमियम इज आर्बिट्रेरली डिटरमिन्ड दैट इज सब्जेक्ट टू एरर. हमने 6% एवं ही लाइक हमने उसके अंदर एडजस्ट कर दिया विच मे नॉट बी द एक्यूरेट एस्टिमेटर और द प्रेडिक्टर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड. द रिस्क प्रीमियम इज डिपेंडेंट ऑन द मैनेजर हु कंडक्ट द एनालिसिस. अब वो रिस्क प्रीमियम कितना ऐड करना है अगेन दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. हमने क्या तो दिया कि हम रिस्क प्रीमियम में वैक में हम उसको एडजस्ट कर देंगे जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया. लेकिन ये जो आपने 6% ऐसे ही उठा के उसके अंदर लिख दिया तो ये दैट कैन नॉट बी द ट्रू प्रेडिक्टर. हो सकता है कि वो लाइक यू नो हो सकता है कि वो फॉल्टी हो. दैट इज सब्जेक्ट टू एरर राइट. So thus the decision to accept or reject the foreign project which is based on the estimated NPV of the project could be dependent on the manager's arbitrary decision about the risk premium to use within the required rate of return. तो ये थोड़ा सा आपको केयर करना है while you are doing it. अच्छा जी. Now let's come to the two financing alternatives for the Luxon projects. जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है अपने सामने स्लाइड के ऊपर. वी आर गोइंग दो कॉलम्स है हमारे पास और हम बेसिकली हियर वी आर गोइंग टू कंपेयर द टू फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स फॉर द Luxon प्रोजेक्ट्स. Luxon प्रोजेक्ट के दो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला है रिलाई ऑन यूएस डेट 20 मिलियन बोरोड एंड इक्विटी ऑफ 20 मिलियन. दूसरे में है रिलाई ऑन अर्जेंटाइन डेट 40 मिलियन पैसो बोरोड एंड इक्विटी ऑफ 20 मिलियन डॉलर. अब हम इन दोनों के जो है ना फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी एनपीवी क्या कैलकुलेट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जेंटाइन रेवेन्यू अर्जेंटाइन पैसों में दोनों कॉलम्स में देखें 200 लेस अर्जेंटाइन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10 और अर्जेंटाइन इंटरेस्ट एक्सपेंस 15% इंटरेस्ट रेट. अच्छा यहाँ पे हमारा क्योंकि डेट जो पहले कॉलम में अगर आप देखें तो हमारे पास जो डेट था वो सिर्फ यूएस डेट था तो हमारा जो अर्जेंटाइन पैसों में इंटरेस्ट रेट है वो 0 होगा. जबकि इस केस में हमारा अर्जेंटाइन पैसों के ऊपर रिटर्न 15% है विच इज ऑफ द रेवेन्यू. सो अर्जेंटाइन पैसो इज इक्वल टू 6. तो 200 में से लेस करेंगे आप 10 को दैट कम्स टू 190. यहाँ पे 200 में से लेस करें 190 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 ये आपके पास आ गया 6. अर्जेंटाइन इंटरेस्ट एक्सपेंस इज 6%. इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट आपने किया. इंटरेस्ट एक्सपेंस इज दी आपका 40 मिलियन पैसोस आपने बोरो किए 40 मिलियन का 15% दैट बिकम्स 6. 40 का 15% कैलकुलेट कर लें. 40 मिलियन आपने बोरो किया हुआ ना अर्जेंटाइन पैसोज में तो उसके ऊपर 15% मेक्स 6. ठीक है तो ये आ गया आपका 200 में से 10 लेस किए 190 में से 6 और लेस कर दें दैट इज इक्वल टू 184. अप टिल नाउ इट इज क्लियर. मैं रिपीट करती हूँ. ये देखें फर्स्ट कॉलम में 200 में से लेस किया आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज इक्वल टू 10. क्योंकि यहाँ पे आपने कोई अर्जेंटाइन डेट नहीं लिया हुआ तो इसलिए यहाँ पे कोई उसका एक्सपेंस भी नहीं है. इंटरेस्ट एक्सपेंस जाहिर है आपने वो डेट नहीं लिया तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नहीं है 0 और आपका पूरा आ गया 190. लाइक यू हैव जस्ट
डिडक्टेड द ऑपरेटिंग एक्सपेंस आउट ऑफ दैट। जबकि सेकंड वाले कॉलम में आप देखें 200 में से आपने 10 लेस किए, दैट वाज द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और फिर आपने से उसमें से 6 और लेस किए। एंड व्हाट आर दोस 6? दैट इज द अर्जेंटाइन इंटरेस्ट एक्सपेंस 15% रेट के हिसाब से। 40 मिलियन आपका डेट था, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, 40 मिलियन का आपने 15% कैलकुलेट किया, दैट कम्स टू इक्वल टू 6। 40 का 15% 6, 200 में से 10 लेस किए 190, 190 में से 6 लेस किए, दैट कम्स इक्वल टू 184। अच्छा जी, अब आगे हैं, अब हम इस वाले कॉलम को पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। टैक्सेस 13%, 30% रेट, टैक्स 30% रेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। 190 का 30%, 190 मल्टीप्लाइड बाय 30, और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं 184 मल्टीप्लाइड बाय 30, ठीक है। 190 मल्टीप्लाइड बाय 30, 57। दूसरे कॉलम में आए 184 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, दैट इज इक्वल टू 55.2। अब इनको इसमें से लेस कर दें, अर्जेंटाइन अर्निंग्स में से टैक्सेस को लेस दें कर दें ताकि हमारे पास आ जाए अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। 190 लेस 57, दैट इज इक्वल टू 133। दूसरे कॉलम में आइए 184 माइनस 55.2, दैट इज इक्वल टू 128.8। अब प्रिंसिपल पेमेंट ऑन अर्जेंटाइन डेट, अब देखें इसमें तो अर्जेंटाइन डेट लिया ही नहीं, ये जीरो हो गया। यहाँ पे हमने 40 मिलियन लिया था सेकंड ऑल्टरनेटिव में, तो हम उसमें से लेस कर देंगे 40। समझ आ रहा है? 133 में से जीरो लेस किया, कुछ भी नहीं, 133 आ गया हमारे पास यहाँ तक। और एंड 128 में से आप अपना डेट वापस कर दें, हम इंटरेस्ट पहले पे कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 88.8। ये आपके अर्जेंटाइन पैसों में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज रेट, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीनेशनल फर्म which is operating in different countries and that is exposed to the exchange rate fluctuations, और exchange rate हमारा इस वक्त जो है that is equal to 0.40 के बराबर डॉलर के। तो 0.40 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे so that the amount is in dollars, so it is equal to 133 multiplied by 0.40, that is equal to 53.2। सेकेंड कॉलम में देखिएगा 88.8 multiplied by 0.4, that is equal to 35.52, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से लेस कर दें आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, 53.2 लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10, that is equal to 43.2। उसमें से और लेस करें इंटरेस्ट एक्सपेंस को विच इज इक्वल टू 1.8, फिर उसमें से यूएस टैक्स बेनिफिट ऑन द यूएस एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन 30% टैक्स रेट 3.54, एंड उसमें से लेस कर दें प्रिंसिपल पेमेंट ऑन द यूएस डेट, दैट इज इक्वल टू 20 मिलियन। इस केस में यहाँ देखें यूएस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए 10, इंटरेस्ट एक्सपेंस कोई नहीं थे, देन यूएस टैक्स बेनिफिट ऑन द यूएस एक्सपेंसेस +3 एंड -0। अब 53.2 में से इन सब को प्लस माइनस करके यू आर गोइंग टू हैव दिस डॉलर कैश फ्लो, और इस 35.52 में से ये सब चीजें करके यू आर गोइंग टू हैव दिस कैश फ्लो। इसको कैलकुलेट कीजिएगा अपने पास, 53.2 लेस 10 लेस 1.8 प्लस 3.54 लेस 20, सो इट इज इक्वल टू 24.94। दूसरे कॉलम में आ जाए 35.52 लेस 10 लेस 35.52 लेस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 28.52। दोनों कॉलम्स में देख लें डॉलर कैश फ्लो हमारा, जब हमारा जो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है उसमें है 24.92 और दूसरे वाले कॉलम में हमारे पास है 28.52। Now we are going to look at the present value of the dollar cash flows discounted at the cost of equity assumed to be 18%। अब हम present value कैलकुलेट करने जा रहे हैं
इस कैश फ्लो की विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू दी 18%। अब 18% के हिसाब से हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड द फार्मूला सेज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू present value 1 plus I raised to power n, where present value is equal to future value 1 plus I raised to power n. तो 24.94 divided by 1.18, that goes to 21.35। फ्यूचर वैल्यू एक साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे, दिस इज 24.94। ये देखें, डिवाइड करें उसको, डिस्काउंट रेट क्या है, डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 18%, 1 प्लस 0.18। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 24.94 divided by 1.18, it comes to 21.16। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास। सेकंड में आ जाए 28.52, उसी फार्मूला से (28.52) divided by 1.18, that is 24.169, that is equal to 24.17। ये हो गया। ये देखें, अब आपका इनिशियल कैश आउटले कितना, देखें दिस इज 20 मिलियन। 20 मिलियन आपका इक्विटी आउटले है इसमें भी और दोनों प्रोजेक्ट्स में। अब आप इसमें से 20 मिलियन को लेस कर दें, 21.135, ये हमारा इक्विटी आउटले है। रिमेंबर दिस थिंग, हम सिर्फ इक्विटी के बारे में बात करें, -20 जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, इट इज इक्वल टू 1.135। और सेकंड में देखें 24.17 + 20, that is equal to 4.17। So NPV for the first financing option is equal to 1.135 and for the second option it is equal to 4.17। हम जब अपना क्राइटेरिया कैलकुलेट करते हैं या हम जिस क्राइटेरिया पे बात करते हैं फॉर दी प्रोजेक्ट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन फॉर दी कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, हम ये कहते हैं कि हमारी अगर एनपीवी पॉजिटिव में हो, ज्यादा बड़ी हो, तो दैट इज गोइंग टू बी मोर फीजिबल, सो हायर इज बेटर। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपके ख्याल में कौन सी वाली अल्टरनेटिव बेहतर है? यस, डेफिनेटली अबाउट द सेकंड ऑप्शन विच गोज फॉर द हायर एनपीवी, दैट इज द प्लस एनपीवी जिसका ज्यादा है। So the analysis shows that the project generates of NPV of 1.13 million if the project is partially financed with the dollar denominated debt versus an NPV of 4.17 million if it is partially financed with the peso denominated debt। तो आपके सामने है कि ये क्या एनालिसिस है। Since the peso is expected to depreciate significantly over the year, Lexin will be better off using the more expensive peso denominated debt than the dollar denominated debt. That is, the higher cost of debt is more than offset by the reduced exposure to the adverse exchange rate fluctuations. Consequently, Lexin should finance this project with a capital structure that includes the peso denominated debt even though the interest rate on this debt is high। लेकिन चूंकि हालांकि उसका इंटरेस्ट रेट हाई है, लेकिन चूंकि उसका जो exchange rate fluctuation है, that is going to be a positive thing for them, so it is better to go for this kind of a project for them. So the NPV of the foreign project is dependent on the project's capital structure for two reasons. Number one is the capital structure can affect the cost of capital, and number two is secondly the capital structure influences the amount of cash flows that are distributed to the creditors in the local currency before taxes are imposed and funds are remitted to the parents। पहली बात तो इसलिए क्योंकि they are connected, कि कैपिटल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है that can affect the cost of capital, और दूसरी रीजन ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर influences the amount of cash flows। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज को इफेक्ट करता है that are distributed to the
creditors in the local currency before the taxes are imposed and funds are remitted to the parents. मतलब taxes को लगाने से पहले before you remit it to the parent, that is going to affect. So the overall capital structure of an MNC is essentially a combination of the capital structure of the parent body and its subsidiaries. तो जो capital structure है, that is obviously a combination of the capital structure of the parent body and its subsidiary. Parent body means जो उसका head office है, उसका capital structure क्या है, प्लस जो subsidiaries हैं उनका capital structure क्या है, जो overall firm का capital structure होगा, that is going to be the combination of these two components. That is, what is the capital structure of the parent and what is the capital structure of the subsidiary. So the capital structure decision involves the choice of debt versus equity financing and is influenced by both corporate and country structure. So पहली बात तो ये कि it involves the choice of debt versus equity financing, कि हमारे पास debt और equity financing के proportions क्या हैं, combinations क्या हैं, and it is also influenced by the countries, by both the corporate and the countries characteristics. हमारे पास ये effect होते हैं by the corporate and by the countries characteristics से. Corporate characteristics might be कि आपका organization का क्या culture है, आपके relationships क्या है creditors के साथ, rules, regulations, policies, how do you follow all them, and your country characteristics, आपके country का environment कैसा है, economic environment, political environment, legal environment, tax laws, then certain barriers, political instability, economy boom में है, recession में है, technological advancement कैसा है, resources के point of view से क्या है, and all that stuff. So corporations का भी हम करेंगे, corporate level पे भी हम analysis करते हैं और हम country level पे भी analysis करते हैं, because capital structure decision, it is going to be involved the decision about debt and equity, which are going to be largely affected by both at corporate and at the country level. So something to read out about the influence of the corporate structures. Corporate structures में जो पिछली स्लाइड पे मैं आपसे जिक्र कर रही थी, we are going to talk about the corporate structure. कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आप देखें हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, दो चीजें हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और एक आपका कंट्री स्ट्रक्चर है. कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ द एमएनसीज कैश फ्लो, मोर स्टेबल कैश फ्लोज द एमएनसी कैन हैंडल मोर डेट. आपकी जो डेट का आपका रीपेमेंट का तरीका है या जो आपका पैटर्न होगा, दैट लार्जली डिपेंड्स ऑन कि आपके एमएनसी का कैश फ्लो का क्या पैटर्न है. द मोर स्टेबल इट इज, इसका मतलब यह है कि द एमएनसी कैन हैंडल मोर डेट. समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका मतलब है कि एमएनसी कैन इजीली हैंडल दी डेट. लेकिन अगर वो इतना स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि एमएनसी विल बी क्वाइट शेकी एंड दे विल नॉट बी एबल टू रीपे ऑल ऑफ इट्स डेट ऑन टाइम. So the stability of cash flow, it largely depends on the more stable cash flows, the MNC can handle more debt. MNC's credit risk, lower the risk, more access to the credit. Credit risk का मतलब ये है कि the MNC अगर credit risk low है, इसका मतलब ये है कि the MNC is quite vulnerable. It's not vulnerable to the credit risk or to that. MNC can easily manage its payments, its financial obligations, credit payments. तो अगर तो वो पहले वाले debts अपने आराम से पूरे कर सकती है, उनकी obligations को easily meet कर सकती है, इसका मतलब है कि MNC that has more access to the credit, right? So the MNC's credit risk lower होने का मतलब ये है that it has more access to the credit. MNC's access to the retained earnings. MNC is access to the retained earnings. अगर तो MNC की access है to the retained earnings, it means it will be profitable, less growth opportunities and more able to finance with earnings. अगर उसकी retained earnings के ऊपर अपनी access ज्यादा है MNC की, तो क्या होगा? It is going to be more profitable and there will be less growth opportunities and more able to finance with earnings. So highly profitable MNCs may be able to finance most of their investment with retained earnings and therefore use an equity intensive capital structure. तो अगर आप retained earnings अपनी अगर आपके पास access में है तो इसका मतलब है आप equity intensive capital structure अपना adopt कर सकते हो. Conversely,
MNCs that have small level of retained earnings may rely on debt financing. अगर आपके contrary to this, अगर आपका retained earnings कम है, तो then you might shift towards the debt financing. Growth-oriented MNCs are less able to finance their expansion with retained earnings and tend to rely on debt financing. जिन MNCs के का mindset ये है कि they want to grow further, तो वो debt financing की तरफ ज़्यादा जाएंगी और वो इक्विटी फाइनेंस के ऊपर कम रिलाई करेंगी बिकॉज दे वांट टू फाइनेंस देयर एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ द डेट फाइनेंसिंग. MNCs with less growth need less new financing and may rely on retained earning rather than debt. तो अगर ग्रो नहीं करना चाह रहे या ग्रोथ फेज से निकल आए हैं तो दे विल बी रिलाइंग मोर ऑन रिटेन्ड अर्निंग. सो इन द नटशेल जो फर्म्स जो MNCs चाहती हैं कि दे वांट टू ग्रो इन द फ्यूचर, एक्सपैंड इन द फ्यूचर, वो डेट फाइनेंसिंग के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेंगी सो एज फॉर द एक्सपेंशन प्लान, राइट. एंड दोज हु आर इन द लेस ग्रोथ दे मे रिलाई ऑन द इक्विटी earnings or the finance method than for the debt. Moving on, MNC's guarantee on debt. Subsidiary debt is backed by parent, the subsidiary can borrow more. अच्छा, अगर कई दफा ये होता है कि पेरेंट जो है वो गारंटी दे देता है अपनी सब्सिडरी के हवाले से. सो इफ द सब्सिडरी डेट इज बैक्ड बाय द पेरेंट, द सब्सिडरी कैन बोरो मोर. अगर सब्सिडरी का जो डेट है दैट इज गोइंग टू बी बैक्ड बाय द पेरेंट, सब्सिडरी जो है वो ज्यादा बोरो कर सकती है. MNC's agency problem, not easy to monitor subsidiary, issue stock in host country, note there is a potential conflict of interest. Acha, while we are talking about the MNC's agency problem, let me read out this thing for you. If a subsidiary in a foreign country cannot easily be monitored by investors from the parent country, agency costs are higher. अगर parent उसको अच्छी तरह से monitor नहीं कर सकता तो agency cost ज़्यादा होगी. To maximize the firm stock price, the parent may induce the subsidiary to issue stock rather than the debt in the local market so that its managers there will be monitored. In this case, the foreign subsidiary is referred to as the partially owned rather than wholly owned by the MNC parent. अच्छा, अब ये होगा कि जो सब्सिडरी है वो अपने ओन पे इक्विटी रेज करना शुरू कर देगा और उसमें क्या होगा, दिस स्ट्रेटेजी कैन अफेक्ट द MNC's कैपिटल स्ट्रक्चर. इट मे बी फीजिबल व्हेन द MNC पेरेंट कैन एनहांस द सब्सिडरी इमेज एंड प्रेजेंस इन द होस्ट कंट्री और कैन मोटिवेट द सब्सिडरी मैनेजर्स बाय अलाउइंग देम पार्शियल ओनरशिप. तो सब्सिडरी जो अगर अपने एंड के ऊपर वहां पे इक्विटी रेज करेगी तो जाहिर है वहां पे ओनरशिप उनको मिलनी शुरू हो जाएगी. जब ओनरशिप मिलेगी तो डेफिनेटली उनका कंट्रोल वहां पे बढ़ जाएगा. सो दे वांट टू गिव देम अ फील कि दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. एजेंसी प्रॉब्लम और ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. वन कंसर्न अबाउट अ पार्शियली ओन्ड फॉरेन सब्सिडरी is a potential conflict of interest, especially when its managers are minority shareholders. अब वहाँ पे क्योंकि जाहिर है कि आपने होस्ट कंट्री के जो इक्विटी ओनर्स हैं वो ले लिए, शेयर होल्डर्स ले लिए, तो देयर माइट बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज शेयर होल्डर्स एंड द MNC या पेरेंट का जो शेयर होल्डर है उनके दरमियान में. So these are basically the MNC's capital structure decision which are being influenced by the corporate characteristics, जिसके अंदर हमने पढ़ा नंबर 1 stability of MNC's cash flow, number 2 MNC's credit risk, number 3 is MNC's access to retained earnings, number 4 was MNC's guarantee on debt and last was the MNC's agency problem. आगे चलें, अब हम country characteristics के बारे में बात करेंगे. Number 1 is stock restriction. Stock restrictions का मतलब ये है less investment opportunity, lower cost of raising equity. अब ये क्या चीज है? Stock restrictions in the host country. In some countries, governments allow investors to invest only in local stocks. अब कुछ गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं, वो ये कहती हैं कि सिर्फ लोकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें. Even when the investors are allowed to invest in other countries, they may not have complete information about the stock of companies outside their home country. अगर हम अलाउ कर भी दें अदर कंट्रीज में उनको इन्वेस्ट करना, they may not have the complete information about the stocks of companies outside their home countries. अपने होम कंट्रीज के अलावा किसी और जगह के ऊपर स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, that is a pretty difficult. This represents an implicit barrier to the cross-border investing. Furthermore, potential adverse exchange rate effects and tax laws can discourage investors from investing outside their home countries. होम कंट्री से बाहर इन्वेस्ट करने में हमेशा कुछ जो डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि दीज आर दी
एडवर्स एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस एंड टैक्स इफेक्ट। इससे इन्वेस्टर डिस्करेज हो जाएगा थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड द लोअर कॉस्ट ऑफ रेजिंग इक्विटी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट्स। If the interest rates are lower, eventually the cost of debt is going to be low. जैसे कि हमने previously example में भी discuss किया Luxon वाली में, अगर आपके interest rates low होंगे तो eventually you will end up with lower cost of debt. ठीक है, अगर आपके interest rates high होंगे आपका जो cost of debt है वो increase हो जाएगा। तो you have to look at कि अगर आप अपना debt financing करने जा रहे हो फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंट्री तो वहां पे आपके इंटरेस्ट रेट्स के क्या सिचुएशन है, क्या वो हाई है या क्या वो लो है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू लार्जली इफेक्ट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन स्ट्रेंथ ऑफ होस्ट कंट्री करेंसी। हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो होस्ट कंट्री की करेंसी है उसकी क्या स्ट्रेंथ है। इफ वी एक्सपेक्ट इट टू वीकन, बोरो होस्ट कंट्री करेंसी टू रिड्यूस एक्सपोजर। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि इट इज गोइंग टू, जो होस्ट कंट्री की करेंसी है, इफ वी एक्सपेक्ट इट टू गेट वीकेंड, देन वी कैन बोरो द होस्ट कंट्री करेंसी टू रिड्यूस एक्सपोजर। कंट्री रिस्क। अगर कंट्री रिस्क में इफ दे आर लाइकली टू ब्लॉक फंड्स, कन्फिस्केट एसेट्स, प्रेफर लोकल डेट फाइनेंसिंग। अच्छा, ये जो कंट्री रिस्क एनालिसिस के हवाले से मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती चलूं कि कई दफा ये होता है कि आपके जो कंट्री के अंदर जो होस्ट आपकी कंट्री है वो ब्लॉक फंड्स की ऑप्शन देती है। ब्लॉक फंड्स का मतलब ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट से आपने जो कुछ भी अर्न किया उसमें से आपने उन अर्निंग्स को या उन कैश फ्लोस को उसी कंट्री के अंदर कुछ देर के लिए इन्वेस्टमेंट में रखना है। तो अगर तो उन्होंने आपको ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कंट्री रिस्क के हवाले से, तो आप बेहतर यह है कि आप प्रेफर करें डेट फाइनेंसिंग। क्यों? डेट फाइनेंसिंग से आपको ये फायदा होगा कि आप उन्हीं की करेंसी में लोन लेंगे और उन्हीं की करेंसी में उनको इंटरेस्ट पेमेंट पे ऑफ कर देंगे जब तक आपके पास वो ब्लॉक्ड फंड अवेलेबल है, या उस ब्लॉक्ड फंड को इन्वेस्ट कर दें उसी कंट्री में, सो दैट you could get the required rate of return on that particular investment. मतलब ब्लॉक फंड्स को आपने ऐसे नहीं रखना बल्कि ब्लॉक फंड्स को आपने इन्वेस्ट कर देना इन दैट वेरी कंट्री। सो दिस इज अबाउट द कंट्री रिस्क एनालिसिस। कंट्री रिस्क इन होस्ट कंट्री। If the MNC subsidiary is exposed to risk that a host government might confiscate its assets, एक मैंने चीज छोड़ दी, that is confiscation। अगर आपको यह खतरा हो कि होस्ट गवर्नमेंट जो है वो आपके एसेट्स को कन्फिस्केट कर लेगी, तो द सब्सिडरी में यूज मच डेट फाइनेंसिंग इन दैट होस्ट कंट्री। तो आप उस होस्ट कंट्री से ज्यादा डेट फाइनेंसिंग करें। Then local creditors that have lent funds will have the genuine interest in ensuring the subsidiary is treated fairly by the host government। क्योंकि आपने local creditors को involve कर लिया उस debt financing में, तो फिर definitely उनका भी interest होगा कि government उनको fairly treat करे। तो if you are facing that threat from that host government, तो then involve those people in that particular thing. In addition, if the MNC's operations in a foreign country are terminated by the host government, it will not lose as much if its operations are financed by the local creditors। लेकिन अगर local creditors का पैसा लगा हुआ है उस particular project में, तो they will be more worried about that। अगर आपका अपना पैसा लगा है फिर तो आप because your connection is with the parent, आप तो host, आप तो home, जो आपका home country है आपका तो connection उनसे है। Under these circumstances, the local creditors will have to negotiate with the host government to obtain all or part of the funds they have lent after the host government liquidates the assets it confiscates from the MNC। तो इस तरह फिर उनका इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। जाहिर है कि उनके अपने स्टेक्स लगे हुए हैं, तो they will be really in a position to fight for the case with the government। And last is the tax laws। Higher tax rates prefer local debt financing। अच्छा, अगर टैक्स रेट्स इन दी जो टैक्स लॉज इन दी होस्ट कंट्रीज हैं, दे आर अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल in determining the MNC's capital structure। Foreign subsidiaries of an MNC may be subject to a withholding tax when they remit earnings। तो आपको एक और टैक्स लगता है जिसको हम कहते हैं withholding tax, जो कि जब मैंने आपको कैपिटल बजटिंग का चैप्टर पढ़ाया था तो उस वक्त भी बताया था। By using local debt financing instead of relying on parent financing, they will have to make interest payments on the local debt and thus may be able to reduce the amount to remit it
periodically. तो इस हवाले से अगर टैक्स रेट्स हाई हैं देन अगेन यू प्रेफर द लोकल डेट फाइनेंसिंग which is better on your part, right? Now revising the capital structure in response to the changing conditions. हम अपने capital structure को किस तरह revise कर सकते हैं? Capital structure once formed, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको change नहीं कर सकते या हम उसको revise नहीं कर सकते. We can update it, we can revise it in response to the changing conditions. As economic and political conditions and the MNC's business change, the cost and benefits of each component cost of capital also changes. जैसे जैसे country की situation change होती है, उनकी economic environment change होती है, political environment change होती है, MNC's के businesses भी change होते हैं, उनके prospects भी change होते हैं, उनका the way they are doing business, the way they are generating profits, वो उनकी earnings, उनके cash flow सब चीजें change होती हैं. So the cost and benefits of each component cost of capital will change too. हर component of cost के जो है cost और benefit वो दोनों change होते हैं. An MNC may revise its capital structure in response to the changing conditions, and it must. They may revise their capital structure based on the changing conditions, and they should change it. Why? Because it is very very important कि वो changing conditions के response में अपने उसको अपने capital structure को adjust करें. For example, some MNCs have revised their capital structure to reduce their withholding taxes on the remitted earnings. तो कभी कभार ये भी कर सकते हैं कि MNCs they have revised structure in order to reduce the withholding taxes. अपने taxes को बचाने की खातिर भी on the remitted earnings they may do so. Okay, let's look at this diagram. Adjusting the multinational capital structure to reduce withholding tax. पहली सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन, पेरेंट एक साइड पे और फॉरेन सब्सिडी दूसरी साइड पे. लार्ज इक्विटी इन्वेस्टमेंट दे रही है पेरेंट टू द फॉरेन सब्सिडी, और फॉरेन सब्सिडी उसके रिस्पांस में दे आर रिमिटिंग द लार्ज सम ऑफ रेमिटेड फंड्स टू द पेरेंट. यहाँ से लार्ज इक्विटी इन्वेस्टमेंट जा रही है और फॉरेन सब्सिडी इज रिमिटिंग बैक द लार्ज सम ऑफ रेमिटेड फंड्स टू द पेरेंट. नेक्स्ट में आए स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्रीज डेट फाइनेंसिंग बाय द सब्सिडी. अब अगर हम सब्सिडी जो है वो डेट फाइनेंसिंग कर ले, लोकल डेट फाइनेंसिंग क्या कर ले, तो क्या होगा कि फॉरेन सब्सिडी जो है वो लोन ले लेगी लोकल बैंक्स इन दी होस्ट कंट्री से और उनको पेमेंट्स देगी इंटरेस्ट की. ठीक है, तो इस तरह उनका जो प्रोपोर्शन है वो डिवाइड हो गया. अब उनका सारा इक्विटी नहीं रहा, कुछ डेट हो गया जो कि उन्होंने लोकल बैंक से लिया था, और उस लोकल बैंक से जो लोन लिया उसके अगेंस्ट वो कुछ उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स भी दे रहे हैं. दूसरी साइड पे आप आ जाएं तो उनका जो इक्विटी पोर्शन था जो पेरेंट था, अब उसको स्मॉलर इक्विटी इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी, और इसके रिस्पांस में जो रेमिटेड फंड्स का जो पोर्शन है वो भी ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपने अब अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. एक लोन्स में, डेट में जो आप लोकल उससे ले रहे थे होस्ट गवर्नमेंट से, और दूसरा आपका जो पेरेंट से इक्विटी वाला था वो भी ऑटोमेटिकली स्मॉल हो गया. Now the strategy of increased equity finance by the subsidiary. अगर equity finance को आप increase कर दे तो क्या होगा? Host country shareholders invest करेंगे stocks में to the foreign subsidiary, and the foreign subsidiary is going to give the dividend payments to the host country nationals. ऊपर वाले केस में आप देखें हमने डेट यूज किया और यहाँ पे हमने इक्विटी फाइनेंसिंग की दोनों साइड पे. ये भी इक्विटी फाइनेंस है, और दूसरी साइड पे आप देखें कि इक्विटी फाइनेंस पेरेंट प्रोवाइड कर रही है और साथ ही जो उसका स्मॉल रेमिटेड फंड्स हैं वो उसको बैक कर रही है. Now the increased debt financing by the subsidiary, a large amount of internal funds may be available to the parent. The need for the debt financing by the parent may be reduced, and the revised composition of debt financing may affect the interest charged on the debt as well as to the MNC's overall exposure to the exchange rate risk. तो इस तरह से हमने अपना जो MNC का एक्सपोजर था टू दी ओवरऑल एक्सचेंज रेट वो भी हमने बचा लिया. Reduced debt financing by the subsidiary, a smaller amount of internal funds may be available to the parent, and the need for the debt financing by the parent may be increased. The revised composition of debt financing may affect the interest charge on the debt as well as the MNC's overall exposure to the exchange rate risk. अच्छा जी, let's look at this host country conditions, और हमने आगे उसकी डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं. हायर कंट्री रिस्क, द लोकल डेट फाइनेंसिंग बाय द सब्सिडियरी हायर, इंटरनल फंड्स अवेलेबल टू द पेरेंट हायर, एंड डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट लोअर. एंड सिमिलरली अगर उसके इंटरेस्ट रेट हायर या लोअर होंगे अकॉर्डिंगली यू विल हैव डिफरेंट पैटर्न्स,
और ब्लॉक फंड्स का देख लें, अगर लोकल डेट फाइनेंसिंग बाय द सब्सिडरी हायर है, इंटरनल फंड्स अवेलेबल टू द पेरेंट्स हायर है एंड डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट लोअर है। विद होल्डिंग टैक्सेस के पैटर्न्स और कॉर्पोरेट टैक्सेस के भी पैटर्न आपके सामने हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट द local versus global target capital structure. An MNC may deviate from its local target capital structure when the local conditions and project characteristics are taken into consideration. If the proportions of the debt and equity financing in the parent or some other subsidiaries can be adjusted accordingly, the MNC may still achieve its global target capital structure. MNC फिर भी अपना global target capital structure achieve कर सकता है. For example, a higher degree of financial leverage is appropriate when the host country is in political turmoil, while a low degree is preferred when the project will not generate cash flows for some time. A capital structure revision may result in a higher cost of capital, so an unusually high or low degree of financial leverage should be adopted only if the benefits outweigh the overall cost. So dear students, that was all about today's lecture. See you next time. Good luck and Allah Hafiz.